سہولیات کی فراہمی کا عہد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی انتہائی سرد موسم میں بھی متحرک۔ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ پروجیکٹ کا تفصیلی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ کی تکمیل سے پہلی بار رنگ روڈ کا سرکل مکمل ہوگا۔ لاہور سے چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ بروقت عوامی سہولتوں کی تکمیل اور فراہمی کا عہد پورا کرنے کی طاقت صرف محسن سپیڈ کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ سرد دن اور رات میں جہاں ایک طرف مزدور اور متعلقہ حکام منصوبوں پر محنت کر رہے ہیں، وہیں ان پروجیکٹس کی رفتار اور معیار کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کی حوصلہ افزائی اور انہیں شاباش دینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی ہمیشہ متحرک رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انتہائی سرد رات میں 2 گھنٹے تک کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ کا تفصیلی دورہ کر کے 8 کلومیٹر طویل پروجیکٹ پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ لیا۔ انہوں نے 31 جنوری تک منصوبہ مکمل کرنے اور پروجیکٹ کے ساتھ نالے کا ڈیزائن تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ حکام کو ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنے کی بھی ہدایات کی۔ صوبائی وزراء عامر میر اور اظفر علی ناصر بھی اس موقع پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ساتھ موجود تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی لاہور کی یہ رنگ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ 2.5 لاکھ کی ٹریفک پر ڈے ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ملتان روڈ کو جا کے ٹچ کر جائے گی اور SL3 بھی ملتان روڈ کو ٹچ کر جائے گی۔ تو ہم نے سرکل بنا لیا، پریکٹیکلی سرکل بن جائے گا، تو آپ کی ایک دفعہ لاہور میں پہلی دفعہ رنگ روڈ پورا سرکل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم اینالائز کر رہے ہیں، 9 تک دیکھ لیں گے کیسا موسم ہے، کیا حالات ہیں، اس کے حساب سے پھر فیصلہ کر لیں گے۔ اسی طرح رہے آخری گھنٹے تک اس طرح نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اتنے کام کیے ہیں پنجاب میں اور 1 سال مکمل ہو رہا ہے پنجاب کی نگران، اور ایک تو وہ 1 سال تاریخی ہے اور دوسرا آپ نے جو ورک کیے ہیں وہ بھی تاریخی ہے، جو سنہری روپ میں یاد رکھے جائیں گے۔ تو پولیس کے جو ملازمین ہیں ان کو گزشتہ 2 سال سے وردیاں نہیں ملی اور نہ ہی ساکس ملی ہیں اور نہ ہی جیکٹس ملی ہیں گزشتہ 2 سال سے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ ایمرجنسی اس سال یونیفارم کی ایک وردی ملی، سب رکا ہوا تھا کام کافی عرصے سے، لیکن اس سال ملے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوسری بھی پرووائڈ کرائیں، لیکن ایک مل گئی۔ گورنمنٹ کا کام بہت ہو گیا بڑا پروجیکٹ ہے، مجھے بڑی امید ہے اگلی گورنمنٹ آگے کرے گی۔ ٹائم ٹیکنگ پروجیکٹ تھا اور کچھ ایسے مسائل تھے جس میں میں خود بھی گھسنا نہیں چاہتا تھا کئی وجوہات کی بنا پر، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ اگلی گورنمنٹ کرے گی، بٹ ہم جو آلریڈی تھا ایگزسٹنگ اس کو ہم نے تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی۔ سر، آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا تجاوزات کے خلاف، وہ بڑا مثبت تھا، شہریوں نے اس کو بہت زیادہ سراہا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مافیا سامنے آ گیا یا کیا؟ کیونکہ اس سے لاہور سے خوبصورتی بہت دوبالا ہوگی۔ بس اس میں نے شکست مان لی اپنی، میں کیا کہہ سکتا ہوں آگے، شکست ماننی پڑی ہے، کئی دفعہ ماننی پڑی وہ تگڑے۔ سر لیکن یہ پروجیکٹ مکمل ہوتا تک کی جلد تک نظر نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ محنت کی ہوئی آپ نے، بس دعا کریں، انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کے مطابق پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری۔ DPO چنیوٹ عبداللہ احمد کی خصوصی کاوش سے مجیدہ میموریل اسپتال کے ساتھ MOU کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف مہر عبدالرحمان طاہر سیال کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کے مطابق پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری۔ DPO چنیوٹ عبداللہ احمد کی خصوصی کاوش سے مجیدہ میموریل اسپتال کے ساتھ MOU کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں DPO چنیوٹ عبداللہ احمد، SP انویسٹیگیشن خالد محمود اور ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ SP انویسٹیگیشن خالد محمود، مجیدہ میموریل اسپتال کے ڈاکٹرز نے MOU پر دستخط کیے۔ MOU سے حاضر سروس پولیس اہلکار
एहलकार, उनकी फैमिलीज, शोहदा की फैमिलीज, रिटायर्ड पुलिस एहलकार और दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों की फैमिलीज मुस्तफीद हो सकेंगी। MOU के मुताबिक जनरल OPD में 30%, वॉक इन OPD फ्री होगी। सर्जिकल प्रोसीजर चार्जेस में 35%, रूम चार्जेस में 50% रियायत होगी, जबकि लेबोरेटरी चार्जेस में 30%, रेडियोलॉजी में 35% और फार्मेसी पर 7% रियायत होगी। इसी तरह सी सेक्शन केसेस में 30%, कार्डियोलॉजी में 40%, प्लास्टिक सर्जरी में 25% रियायत होगी। इस मौका पर DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। गुजरांवाला में मौसम सरमा में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, जिससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान हैं बल्कि इंडस्ट्री मालकान भी अजियत का शिकार हैं। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं हसन भट्टी। जी हसन, बताइएगा गुजरांवाला में कितने घंटे बिजली की बंदिश होती है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि गुजरांवाला में मौसम सरमा में गैपो की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये की बात करता चलूं तो शहरी इलाके जिनमें फतोमन, जना रोड, वादत कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, मॉडल टाउन, सैलर टाउन, वनियावाला और मुतअद्दिद शहरी इलाके जहां पर दिन में 24 घंटों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। जबकि अगर देही इलाकों की बात कर लीजिए तो देही इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जो है अरूज पर है, जिससे शहरी जो है खासे परेशान दिखाई दे रहा है। क्योंकि गुजरांवाला एक सनती शहर है, यहाँ पर जो है मुतअद्दिद सनतें, अगर आपको बताता चलूं तो पंखा साजी की यहाँ पर सनत है, इसके साथ बर्तन साजी की सनत है, कपड़ों की सनत है। तो बिजली की बंदिश के बायस जो सनतें हैं वो बहरान का शिकार दिखाई दे रही है। इसके साथ जब हमारी इंडस्ट्रीज मालकान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस जो है हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जहां पर इंडस्ट्रीज मालकान को परेशानी का सामना, तो वहीं पर जो है घरेलू सार्फिन भी बिजली की लोड शेडिंग से जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब हमारी गैपो के तर्जुमान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे और धुंध के बायस जो है जो ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन जो है वो ट्रिप कर जाते हैं, जिसके बायस बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसमें इजाफा हुआ है। जैसे भी सर्दी की शिद्दत में कमी आती है और धुंध में जो है कमी आती है तो बिजली की लोड शेडिंग में जो इजाफा किया गया है इसे जो है काबू कर लिया जाएगा। जी, साल 9 2024 में बलूचिस्तान सिंध बॉर्डर हब चौकी में मामूर रेंजर्स विंग 31 की ईरानी स्मगलिंग, डीजल और पेट्रोल के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो चीफ कोयटा फहद तारिक रिपोर्ट कर रहे हैं। हब चौकी से ईरानी डीजल भरवा के आने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 31 विंग रेंजर्स की जानिब से सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर हब चौकी पर कायम रेंजर्स चेक पोस्ट पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग का अमल जारी है, जबकि रेंजर्स की जानिब से गाड़ियों से ईरानी डीजल खाली करवाया जा रहा है, जिससे स्मगलर्स के सारे हरबे धरे के धरे रह गए हैं। मुल्क भर में बलूचिस्तान के अलावा ईरानी डीजल की रसद पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। रेंजर्स की इन बिला तफरीक कार्रवाइयों से स्मगलर्स की हौसला शिकनी की जा रही है। साबिक वफाकी वजीर मीर दोस्तैन खान डोमकी की जिला सिब्बी आमद इलेक्शन कैंपेन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से नुमाइंदा स्पेशल टीवी शौकत सोलंकी की खुसूसी रिपोर्ट। साबका MPA चीफ सरदार अक़वाम डोमकी सरदार सरफराज खान डोमकी और साबका वफाकी वजीर मीर दोस्तैन खान डोमकी की इलेक्शन 2024 कैंपेन ऑफिस जिला सिब्बी इफ्तिताह के हवाले से सिब्बी आमद पर जिला सिब्बी की कबायली अमायदीन, सियासी और समाजी शख्सियात ने हजारों की तादाद में टूल प्लाजा सिब्बी पर इस्तकबाल किया। लोगों ने रैली की सूरत में सिब्बी शहर के मुख्तलिफ शाहराओं से होते हुए डोमकी इलेक्शन कैंपेन ऑफिस 2024 पहुंचते ही चीफ सरदार अक़वाम डोमकी सरदार सरफराज खान डोमकी और मीर दोस्तैन खान डोमकी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम कौम परस्ती वाली सियासत नहीं करते, ना ही हम जमीयत उलमा की तरह दीन पर सियासत नहीं करते। हम हक और सच की सियासत करते हैं। हम गरीब आवाम, दुखी इंसानियत की खिदमत की सियासत करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जिला सिब्बी और लेडी की हिंदू बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी, मसीह बिरादरी और तमाम अक़लियती बिरादरी हमारे भाई हैं। हमारे लिए सब एक नज़र है। इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का दिन हमारी जीत का दिन होगा। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर हाजी गुलाम रसूल ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी शहीद की पार्टी है, गरीब की पार्टी है। 8 फरवरी को तीर पर
मोहर लगाकर सरदार सरफराज खान डोंकी और शेर पर मोहर लगाकर मीर दोस्तान खान डोंकी को इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। इस मौका पर मीर अलादत खान जतोई ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम तआस्सुब कौम परस्ती की सियासत नहीं करते, इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं। जो डोंकी बरादरान को वोट दे भी हमारा भाई है, जो वोट ना दे भी हमारा भाई है। लेकिन एक बात इखलाकी दायरे के खिलाफ है कि फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर हमारे मीरों और सरदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज लिखे जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी। इस गैर इखलाकी अमल से तो अच्छा ये है कि जो लोग फेसबुक पर हमारे मीरों और सरदारों डोंकी बरादरान के खिलाफ लिखते हैं, इससे अच्छा तो ये अमल है कि औरतों की तरह घर बैठकर चूड़ियां पहनकर नाचें। इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का दिन डोंकी बरादरान की जीत का दिन होगा। इस मौका पर अकलियती तहसील काउंसलर संतोष कुमार डंग ने अपनी बरादरी के साथ डोंकी कारवां के काफिले में शिरकत की और मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शौकत सोलंकी, स्पेशल टीवी, सिब्बी बलूचिस्तान। मुल्क भर की तरह किला दीदार सिंह में भी सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। उम्मीदवार PP 70 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मीर अबरार अहमद भट्ट ने डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। मेन बाजार में ताजिर बरादरी की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शकील नज़ीर खोकर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। उम्मीदवार PP 70 मुस्लिम लीग नून मीर अबरार अहमद भट्ट ने कहा कि इलेक्शन में वर्कर्स का किरदार अहम होगा। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स पुरअज़म हैं और वो घर घर जाकर कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगे और नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी की ज़मानत बनेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि नून लीग ही वाहिद जमात है जो अवाम की हकीकी जमात है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी फलाह बहबूद के लिए काम किया है। इंशाअल्लाह क़यादत के हुक्म पर मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। अवाम ने इलेक्शन से कबल ही हमारे हक में फैसला दे दिया है, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मुखालफिन को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि हम अवामी खिदमत को अपना नस्बुल ऐन समझते हैं। अवाम की खिदमत और तरक्याती काम हमारा मिशन है। आइंदा इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लियाकतपुर में 2 मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला मुंतकिल कर दिया गया। हादसात धुंध के बाइस पेश आए। अयाज इकराम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लियाकतपुर कौमी शाहरा पर खान बेला टोल प्लाजा के करीब 2 मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। दूसरे हादसे में भी मुसाफिर कोच और कार ट्रालर से टकरा गए। दोनों हादसात में 4 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला में मुंतकिल कर दिया। हादसात धुंध के बाइस पेश आए। और हवेली लखा के जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम में DC 11 और DPO 11 के दरमियान दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। हवेली लखा से सरफराज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। हवेली लखा के जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम में DC 11 और DPO 11 के दरमियान दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 190 रन्स का हदफ दिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले, जबकि DPO 11 की टीम स्कोर का ताकुब करते हुए सिर्फ 135 रन्स बना सकी। DC 11 ने बासानी 55 रन से फतह अपने नाम कर ली। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा कि खेलों का सेहतमंद मुआशरे के लिए दौरे हाजिर की अहम जरूरत है। खेलों की सरगर्मियां नौजवानों में मस्बत रुझान को परवान चढ़ाती हैं और नौजवानों को नशे और बेराहरवी से दूर रखने के लिए क्रिकेट मैच का इनेकाद करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द क्रिकेट के फरोग के लिए ओकाड़ा क्रिकेट लीग मुनक्किद की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ का कहना था कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों में खेलों का शौक पैदा करें और मीडिया खेलों के फरोग के लिए भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा करे। हब में डी हाईगेट पब्लिक स्कूल के सालाना प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत
स्कूल हाजा के तालब इल्म ने हासिल की और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना भी पेश किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खास साबका वज़ीर आला बलोचिस्तान मुआविन ख़ुसूसी सरदार ज़ादा शहजाद साले बतूनी थे। प्रोग्राम में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सरंजाम मोहम्मद तैयब मोंदरा ने दिए। तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर प्रोग्राम में ख़ुसूसी तावन जाम कॉलोनी के सियासी व समाजी शख्सियत बाबल हसनी ने की। शुरका में मेहमान खास नवाज अली बरफत, PB21 और PB22 के उम्मीदवार अली नवाज, खालिद मगसी, अमीर हमजा, सदर फूल पाकिस्तान, CEO फूल गुलाम हुसैन, कौंसलर जमाल मरी, स्कूल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन बलाच बलोच, जनरल सेक्रेटरी खालिद शेरानी, नायब सदर सगीर साजरी, फिनांस सेक्रेटरी इशफाक बशीर, शहजाद जहरी, गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, नायब सदर फूल पाकिस्तान गुलाम मुस्तफ़ा कलदरानी, जॉइंट सेक्रेटरी फूल पाकिस्तान मुनीर शेर बलोच, गुलाम मुर्तज़ा, सफदर खान मक्सी, खालिद बतूनी, कारवां के सीनियर रहनुमा सरवर रूंजा, कौंसलर इस्माइल रंद, तलबा के वालदैन हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर हब ओपन स्कॉश एस जाकिर अली, जॉइंट सेक्रेटरी नजीब अली अहमद बादिल, जुल्फ़कार अली ने प्रोग्राम को तरतीब देने में तावन किया। तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। आखिर में स्कूल के डायरेक्टर सैफुल्ला ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।